ہم کمپنی باغ کی خشک چھوٹی نہر کے کنارے پر چلے جا رہے تھے۔ اس نہر کے دونوں جانب آم کے گھنے درختوں نے سایہ ڈال رکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ بائیں جانب کمپنی باغ کی گراؤنڈز پھیلی ہیں اور دائیں جانب مجیٹ گاؤں کو جانے والی سڑک ہے۔ باغ میں اندھیرا تھا اور نہر کا کنارہ ڈھلانی تھا۔ میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اندھیرے میں مناسب موقع پا کر کسی طرف کو چھلانگ لگا دوں اور پھر اندھیرے اور درختوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنی باغ میں غائب ہو جاؤں۔ میں ایک جگہ رک گیا، رمضان، جہاں وہ درخت ہے جس کے تنے میں میں نے کوٹ بک چھپائی تھی۔ رمضان نے کہا تو چلو اسے کھود کر نکالتے ہیں۔ ہم آم کے درخت کے نیچے آ گئے۔ میں جان بوجھ کر اسے اس درخت کے پاس لایا تھا کیونکہ یہاں ایک باولی تھی جس کی دوسری طرف ناشپاتی کا ایک باغ تھا اور اس باغ کے دوسرے کنارے پر ایک کلب تھا جہاں لوگ شام کو ٹینس وغیرہ کھیلنے آیا کرتے تھے۔ ناشپاتیوں کے درخت ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے اور ان کے درمیان گہرا اندھیرا پھیلا تھا۔ میں نے رمضان سے کہا ہم کوئی زمین کھودنے والی شے ساتھ نہیں لائے، ایسا کرو کہ جہاں میں اشارہ کروں تم وہاں سے زمین کھود ڈالو۔ رمضان اب مجھے کسی قسم کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ بولا کرم دین، تم نے کوٹ بک چھپائی ہے، بہتر ہے کہ تم ہی زمین کھودو۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ کوئی سپاہی ادھر نہ نکلے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر تم میرا کمبل سنبھالو۔ اب میرے اندر کا کمانڈو پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ میں نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ کمبل اتار کر اس طرح رمضان کے اوپر ڈالا کہ اس کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں آ گئی۔ یہ حربہ انتہائی خطرناک اور مہلک تھا اور رمضان جیسا عام بھارتی جاسوس میرے اس جان لیوا حملے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی گردن کی ہڈی توڑنے میں مجھے صرف 1 سیکنڈ کا وقفہ لگا اور اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ میں نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب میں ایک چھوٹا ریوالور تھا۔ میں نے ریوالور سنبھالا اور اپنے آپ کو نہر کی ڈھلان پر واقع باولی کی طرف دوسری جانب لڑکا دیا۔ میں جھاڑیوں میں سے گیند کی طرح لڑکتا ہوا ناشپاتی کے باغ میں گھاس پر جا کر گرا۔ ابھی میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ جہاں میں رمضان کو مار گرا کر آیا تھا وہاں دوسری جانب سے ٹارچ کی روشنی پڑی۔ پھر کچھ آدمیوں کے قدم دوڑتے ہوئے نہر کی منڈیر کی طرف بڑھے۔ میں نے درخت کے پیچھے سے دیکھا تو اندھیرے میں نہر کی منڈیر پر کچھ آدمیوں کے سائے حرکت کرتے نظر آئے۔ پھر کسی نے چلا کر کہا اسے پکڑو، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ ساتھ ہی فضا میں پستول کے فائر کی آواز گونج اٹھی۔ ٹارچ کی روشنی درختوں پر گری اور میں نے درختوں میں اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ ٹارچ کی روشنی نے مجھے اپنی زد میں لے لیا۔ وہ جا رہا ہے، ٹانگوں میں گولی مارو۔ دھائیں سے ایک فائر ہوا، گولی میرے قریب بالکل درخت کے تنے سے ٹکرائی۔ مجھے راستے کا علم تھا اس لیے میں اندھا دھند بھاگتا ہوا ناشپاتی کے درختوں سے نکل کر کلب کی انگریزوں کے زمانے کی بنائی ہوئی عمارت کی باڑ پھلانگ گیا۔ اب میں ٹینس کورٹ میں تھا۔ کلب کی دیوار میں کونے پر ایک زرد بلب جل رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے قدم میرے قریب آ رہے تھے اور ٹارچ کی روشنی میری تلاش میں میرے پیچھے پیچھے تھی۔ میں ٹینس کورٹ کی باڑ کے ساتھ ساتھ بھاگتا چلا گیا، پھر اسے ایک جگہ سے اندازے کے مطابق پھلانگا اور دوسری طرف ایک پرانے ہوز کے پاس آ گیا جہاں اندھیرے میں سرو کے درختوں کی قطار کھڑی تھی۔ یہاں ایک چھوٹا سا راستہ نہر میں سے نکالا گیا تھا تاکہ باغ کو پانی دیا جا سکے۔ میرے پیچھے 2 فائر ہوئے۔ راستے کی منڈیر اونچی تھی۔ میں چھلانگ لگا کر منڈیر کی دوسری جانب جا گرا اور ٹھنڈی کھوئی والے درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگا۔ اندھیرا اور راستوں کا علم میری مدد کر رہا تھا مگر پولیس میرے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے ان کے قدموں کی اور ان کے چلانے کی آوازیں برابر سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی کبھی ایک آدھ فائر بھی ہو جاتا۔ کمپنی باغ کی ٹھنڈی کھوئی جن لوگوں نے دیکھی ہے انہیں معلوم ہوگا کہ اس کے عقب میں عیسائیوں کے کوارٹروں کے قریب سے ایک کچا راستہ نکلتا ہے جو آگے جا کر مجیٹ جانے والی چھوٹی سڑک سے جا ملتا ہے۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اچانک میری نظر ایک کوارٹر کی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی سائیکل پر پڑی۔ میں اسے چلانے لگا تو پہیا جام ہو گیا۔ اس کے پچھلے پہیے میں تالا لگا تھا۔ میں نے اسے وہیں پھینکا اور آگے کو دوڑ پڑا۔ اس دوران کسی کوارٹر میں بندھا کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ سپاہیوں نے اب شور مچا دیا تھا۔ پکڑو پکڑو کی آوازیں میرے چاروں طرف سے آنے لگی تھیں۔ اب میں تھک گیا تھا اور دل میں خیال آنے لگا کہ پکڑ لیا جاؤں گا۔ اسی خیال سے میرے اندر جیسے ایک نئی طاقت اود کر آئی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ مجیٹ روڈ والا موڑ سامنے تھا جہاں سڑک نالے کے ایک پل پر سے ذرا سا گھوم کر آگے جاتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ٹرک شور مچاتا قدرے کم رفتار کے ساتھ پل کا موڑ گھوم رہا تھا۔ میں ایک طرف چھپ گیا۔ پیچھے سے ایک اور فائر ہوا۔ ٹرک میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس کے پچھلے حصے کو پکڑ کر اندر چھلانگ لگا دی۔ میں بند گوبھی کے ڈھیر پر جا گرا۔ ٹرک نے سیدھا ہوتے ہی رفتار پکڑ لی۔ ٹرک اوپر سے کھلا تھا۔ عقب میں ایک تخت لگا تھا۔ میں نے تختے میں سے گردن نکال کر پیچھے دیکھا تو مجھے پل پر بلب کی روشنی میں کچھ سپاہی سڑک پر دوڑتے نظر آئے مگر ٹرک کی رفتار کافی تیز تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ٹرک آدھا گھنٹہ چلا ہوگا کہ اس کی رفتار مدھم ہونے لگی۔ کوئی قصبہ آ رہا تھا۔ میں نے بند گوبھی کے ڈھیر پر چڑھ کر ٹرک کی دیوار سے باہر جھانک کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر کسی قصبے کی روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ یہ روشنیاں زیادہ نہیں تھیں مگر لگتا تھا کہ کوئی اہم قصبہ ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس جگہ اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹرک قصبے کے ایک سنسان بازار میں گھوما تو اس کی رفتار مدھم ہو گئی۔ میں ٹرک میں سے باہر کود گیا۔ میں سڑک پر گر پڑا لیکن زخمی ہونے سے بچ گیا۔ اٹھا اور لپک کر سڑک کے کنارے بند دکانوں کے اندھیرے میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔
ट्रक की सुर्ख रोशनी बाजार के आखिरी किनारे पर पहुंचकर एक तरफ घूम गई। मैंने अंधेरे में सुनसान बाजार का जायजा लिया। उसकी दुकानें पुख्ता थीं। ये वीरका या कोई दूसरा कस्बा नहीं लगता था। मकानों के छज्जे बाहर को झुके हुए थे। रिवॉल्वर मेरी जेब में महफूज पड़ा था। मैं सिर्फ मैल खोरे रंग के खद्दर के मोटे कुर्ते और तहमद में था। पाँव में रबर के जूते थे। कंबल मैंने कंपनी बाग में ही फेंक दिया था। एक चौकीदार लठ जमीन पर मारता हुआ जागते रहो की रट लगाता गुजर गया। जब वो दूर चला गया तो मैं उठा और बाजार के शुरू की दुकानों की जानिब चलता बाहर निकला तो अचानक सामने एक मस्जिद नजर आ गई। मैं एक तरफ अंधेरे में खड़े होकर सोचने लगा कि यहाँ मस्जिद कहाँ से आ गई। मस्जिद आबाद लगती थी क्योंकि उसके बंद दरवाजे पर बल्ब जल रहा था। इसका मतलब था कि इस कस्बे में मुसलमान भी रहते हैं। चुनाचे मैं सड़क पार करके मस्जिद के दरवाजे पर आ गया। मस्जिद का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था कि न जाने अब मेरे साथ क्या सुलूक हो। मस्जिद का इमाम मुझे गिरफ्तार भी करवा सकता था। इमाम मस्जिद पुलिस का आदमी भी हो सकता था। अगर पुलिस का आदमी ना भी हो तब भी वो मुझे पनाह देने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। एक बार तो दिल में आया कि यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मुझे मस्जिद के सहन में से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कोई मस्जिद के दरवाजे की तरफ आ रहा था। फिर आवाज आई, कौन है भाई? दरवाजे पर लगे बल्ब की रोशनी में एक सुर्ख सफेद चेहरे वाले बूढ़े मौलवी साहब खड़े मुझे सर से पांव तक देख रहे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरा भरा हुआ था। उन्होंने सर पर गर्म टोपी और कांधों पर शॉल ओढ़ रखी थी। अंदर आ जाओ बेटा। उनका हुजरा गर्म था। तांबे के हमाम के ऊपर दीवार पर एक बल्ब रोशन था। कोने में चायदानी, प्यालियां और पानी की एक बाल्टी रखी थी। एक गैस का छोटा सा चूल्हा भी था। चूल्हे के पास ही गैस का छोटा सिलेंडर पड़ा था। मौलवी साहब का बिस्तर जमीन पर दीवार के साथ लगा था। उन्होंने मुझे अपना कंबल ओढ़ने को दिया और कहा, यहाँ सो जाओ। तुम बटाले में क्या करते हो बेटा? मैंने कहा, हजरत जी बस वहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ। पहले माली कोटला में सब्जी की दुकान थी। गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। बटाले आकर चाय का एक खोखा बना लिया। वहीं रहकर अपने बूढ़े वालिदैन का पेट पालता हूँ। मौलवी साहब अपने लिहाफ में दुबक कर मेरी शक्ल पर नजरें जमाए हुए कहने लगे, तुम घर से कोई स्वेटर या कंबल लेकर नहीं चले थे? इतनी सर्दी में एक तहमद और कुर्ते में ही निकल आए। मैंने कंबल को जिस्म के गिर्द करते हुए कहा, हजरत जी क्या अर्ज करूं, कंबल था लेकिन मैं उसे रेलवे स्टेशन के बेंच पर रख कर बाथरूम में गया। वापस आया तो किसी ने कंबल उड़ा लिया था। क्या करूं हजरत जी, ऐसे लोग भी हमारे भारत में होते हैं। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल इतने बड़ आए हैं, तुम हजामत नहीं करवाते? मैंने यूं ही कह दिया, बस जी टाइम नहीं मिला, इंशाल्लाह बटाले जाकर बाल कटवाऊंगा। मौलवी साहब ने पूछा, चाय पियोगे? अगरचे मुझे चाय की बेहद तलब हो रही थी, लेकिन मैं मौलवी साहब को अपने बारे में ज्यादा सवालात करने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मुझे नींद आ रही है। वो बोले, अच्छा फिर सो जाओ, अजान होने में ज्यादा देर नहीं है। अगर नमाज पढ़ना चाहो तो आ जाना, नहीं तो सोते रहना। सुबह कौन सी बस पकड़ोगे? मैंने कहा, जी पहली बस पकड़ूंगा जो अजान के बाद जाती है। मौलवी साहब ने कोई जवाब न दिया। उन्होंने अपना चेहरा लिहाफ के अंदर कर लिया। मैंने भी कंबल ऊपर कर लिया। सख्त थका हुआ था, इसलिए हुजरे की गर्म फजा में मुझे बहुत जल्द नींद आ गई। आंख खुली तो मैंने कंबल हटाकर देखा। हुजरे का बल्ब बुझा हुआ था। दरवाजा बंद था और उसकी दर्जों में से धूप की किरणें अंदर आ रही थीं। लगता था कि दिन काफी निकल आया है। मुझे बाहर किसी आदमी के बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे के सुराख में से बाहर झांका तो मेरा दिल उछलकर हलक के पास आ गया। बाहर सहन में बिछी हुई सफ पर मौलवी साहब के पास पुलिस का एक थानेदार बैठा था। मौलवी साहब कह रहे थे, आप चाहें तो बेशक मेरे हुजरे की तलाशी ले लें। यहाँ अगर आपका कैदी आया होता तो मैं आपको जरूर बता देता। मेरा हल्क खुश्क हो गया था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मौलवी साहब ने मुझे बचा लिया था, मगर मुसीबत अभी टली नहीं थी। थानेदार मस्जिद में ही था। अगर वो तलाशी लेने के लिए हुजरे में आ गया तो मेरा पकड़े जाना यकीनी था। थानेदार कह रहा था, हमें आपकी जबान पर एतबार है मौलवी साहब। थानेदार उठ खड़ा हुआ। मौलवी साहब भी उठ खड़े हुए। उसने दोनों हाथों से मौलवी साहब से मुसाफा किया और बोला, हमारी इत्तला के मुताबिक वो इसी इलाके में कहीं छुपा है। उसका हुलिया मैंने आपको बता दिया है। वो हमारे एक आदमी को कत्ल करके भी आया है। अगर वो इधर आए तो बराए मेहरबानी हमें जरूर इत्तला कर दीजिएगा। पाकिस्तानी जासूस भी है। उसे गिरफ्तार करवाना आपका राष्ट्रीय फर्ज है। मौलवी साहब ने पुरसुकून लहजे में कहा, बिल्कुल जी, आप फिक्र न करें। आपका मुजरिम यहाँ आया तो मैं अपना राष्ट्रीय फर्ज जरूर अदा करूंगा। थानेदार ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मस्जिद के सहन से उतरकर बूट पहने, फिर तस्मे बांधकर उठा और मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। मौलवी साहब सफ पर बैठकर किसी पुरानी किताब के मुताले में मसरूफ हो गए। वो जानबूझकर अभी हुजरे में नहीं आ रहे थे। मैं कुछ देर दरवाजे से लगा उनको देखता रहा। फिर मैं जमीन पर लगे अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। मुझे भूख भी लग रही थी। थोड़ी देर गुजरी होगी कि दरवाजा आहिस्ता से खुला। मैंने चौंक कर देखा, मौलवी साहब हुजरे में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। मुझसे
मुझसे कोई बात किए बगैर वो कोने में गए, अलमारी खोलकर उसमें रखा दही का प्याला और 2 रोटियां निकाल कर मेरे सामने रखी और कहा, ये खा लो बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने उनके हाथों को पकड़कर चूम लिया। शिद्दत जज्बात से मेरे आंसू उमड़ पड़े। मैंने कहा, थानेदार से आपकी जो बातें हुई हैं वो मैंने सुन ली हैं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर न भुला सकूंगा। मौलवी साहब का चेहरा जज्बात से आरी लगता था। उन्होंने बाहर जाते हुए कहा, अभी यहाँ से मत निकलना, वो सामने वाला दरवाजा गुस्ल खाने का है। मौलवी साहब हुजरे से निकल गए। उन्होंने बाहर ताला लगा दिया। मुझे ताला लगाने की आवाज भी आई। सख्त भूख लगी हुई थी। मैं मीठे दही के साथ 2 रोटियां खा गया। फिर गुस्ल खाने में जाकर अच्छी तरह से नहाया, कपड़े बदले और कंबल ओढ़ कर बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मंजिल एक बार फिर बम्बई शहर थी। मुझे हकीम साहब से मिलकर पाकिस्तानी डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी नौरीन का सुराग लगाने गुजरात काठियावाड़ के जंगलों में जाना था, जहां उन्हें अगवा करके किसी खुफिया एटमी मरकज में रखा गया था। यही मेरा सबसे अहम तरीन मिशन था। मेरे पास न तो मुनासिब कपड़े थे और न बम्बई तक का किराया था। सोचते सोचते मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई और मैं एक बार फिर सो गया। आंख खुली तो हुजरे के बंद दरवाजे से धूप की जो 2 किरणें लकीरों की शक्ल में अंदर आ रही थीं, अब गायब हो चुकी थी। दिन काफी गुजर गया था। मौलवी साहब अभी नहीं आए थे। मैंने बंद दरवाजे के सुराखों में से बाहर देखा। धूप ढलने लगी थी। थोड़ी देर बाद जोहर की अजान की आवाज बुलंद हुई और नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना शुरू हो गए। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गया। नमाज के बाद मौलवी साहब आ गए। उनके हाथ में रुमाल में बंधा हुआ डिब्बा था। उन्होंने डिब्बा खोलकर सामने रख दिया। अंदर एक कुल्फी में घर की पकी हुई 6 रोटियां और दाल थी। हुजरे के दरवाजे को उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी थी। खाना खा लो बेटा, मैं बीच में आया था मगर तुम सो रहे थे। खाना खाते हुए मैंने मौलवी साहब से कहा, उन्होंने मेरी खातिर बहुत बड़ी इखलाकी कुर्बानी दी है। वो थोड़ा सा मुस्कुराए। बेटा, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो मुझे इल्म हो गया था कि तुम महज परदेसी नहीं, इसलिए मैंने मस्जिद में बैठकर थानेदार से झूठ बोला। खुदा मुझे माफ करे, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक मुसलमान की जान बचाने के लिए किया है। खाने के बाद मौलवी साहब फरमाने लगे, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तुम कहाँ जाओगे? क्योंकि तुम्हारा ज्यादा देर यहाँ रहना खतरनाक होगा। मैंने कहा, हजरत जी, अब आपसे मेरा कोई राज नहीं। मैं यहाँ से बम्बई शहर जाना चाहता हूँ और मुझे कपड़े भी बदलने हैं और मेरे पास बम्बई तक का किराया भी नहीं। मौलवी साहब ने कहा, दोनों बातों का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हिंदू थानेदार अगरचे बज़ाहिर मुझसे मुतमईन होकर चला गया है, मगर उसका एक आदमी मस्जिद के सामने किसी जगह छुपकर या भेस बदल कर जरूर पहरा देगा। तुम किसी भी लिबास में यहाँ से निकलोगे वो तुम्हें पहचान लेगा, इसलिए कि उन्हें तुम्हारा हुलिया बता दिया गया है। वैसे भी तुम्हारा चेहरा यहाँ अजनबी चेहरा है। मैंने कहा, तो फिर आपका क्या मशवरा है? क्या मैं रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से नहीं निकल सकता? मौलवी साहब फरमाने लगे, इस मस्जिद का पिछला दरवाजा कोई नहीं है, तुम्हें मस्जिद के सामने वाले दरवाजे से ही निकलना होगा। तुम अभी यहाँ बैठो, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाता हूँ। मौलवी साहब हुजरे को बाहर से ताला लगाकर चले गए। शाम की नमाज के बाद तशरीफ लाए तो उनके हाथ में एक थैला था। उसमें कॉलर वाली नीली कमीज, एक पुरानी सी पतलून और एक फुल जर्सी थी। मैंने उनकी हिदायत पर ये कपड़े पहन लिए। मेरे पुराने कपड़े मौलवी साहब ने थैले में ठूंसे और उन्हें गुस्ल खाने की 2 छत्ती पर जाकर छुपा दिया। फिर उन्होंने एक छोटी थैली में से 70 रुपए निकाल कर दिए। बोले, इन पैसों की मदद से तुम बड़ी आसानी से बम्बई पहुंच जाओगे। मैंने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहा तो उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। बोले, अब सवाल तुम्हारा यहाँ से निकलने का है। वो बिस्तर पर बैठ गए और सोचने लगे। फिर बोले, आज की रात तुम यहाँ आराम करो, कल कुछ सोचेंगे। वो रात भी गुजर गई। दूसरे रोज सुबह की नमाज के बाद उन्होंने हुजरे में आकर बताया कि थानेदार के जाने के बाद से एक नया फकीर मस्जिद के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया है। यकीनन ये पुलिस का आदमी है और तुम्हारी टोह में है। हम उसे यहाँ से हटा नहीं सकते, इस तरह पुलिस जरूर शक में पड़ जाएगी। मैं कुछ परेशान हो गया। ऐसा लगा कि मेरा रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं ये भी नहीं चाहता था कि वहाँ कोई ऐसी गड़बड़ हो जिससे इस मौलवी साहब पर आंच आए। मेरे रिवॉल्वर में 12 गोलियां भरी हुई थी और वो वैसे का वैसा मेरी जेब में पड़ा था। मैंने मौलवी साहब से कहा कि अगर रात के अंधेरे में मस्जिद की छत पर से दूसरी तरफ कूद जाऊं तो हो सकता है सामने बैठे सीआईडी के फकीर की मुझ पर नजर न पड़े। मौलवी साहब ने कहा, पुलिस वाले इतने अहमक नहीं होते, उन्होंने जरूर मस्जिद की दूसरी तरफ भी कोई अपना आदमी लगा रखा होगा। एकदम से मौलवी साहब को कोई ख्याल सूझा। उन्होंने मेरी तरफ पलट कर कहा, याद आया, एक तरकीब हो सकती है। कल मस्जिद में एक छोटा सा जलसा हो रहा है शाम को, काफी लोग उसमें शामिल होने के लिए आएंगे। जब ये लोग वापस जाने लगे तो उनकी भीड़ में शामिल होकर तुम भी यहाँ से फरार हो सकते हो। क्या तुम ऐसा कर लोगे? मैं वहाँ खतरे में घिरा हुआ था, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहता था। चुनाचे मैंने हामी भर ली। मौलवी साहब ने दूसरे रोज मुझे आकर बताया कि जलसे में शरीक होने के लिए लोग आना शुरू हो गए हैं। मालिर कोटले से और
अमृतसर और दिल्ली से भी लोग पहुंच गए हैं। तुम्हारी गाड़ी अमृतसर से रात 8:40 पर बम्बई की तरफ रवाना होगी। कादियान से तुम शाम की आखिरी ट्रेन पकड़कर अमृतसर चले जाओ। यही बात तय पा गई। दोपहर के बाद मस्जिद में काफी मेहमान पहुंच गए थे। मौलवी साहब ने मुझे जर्द रुमाल दिया, जिसको मैंने सर पर इस तरह बांध लिया कि मेरा आधा चेहरा छुप गया। तीसरे पहर जलसा शुरू हुआ और शाम को खत्म हुआ। मंसूबे के मुताबिक मैं शाम के वक्त जलसा खत्म होने से थोड़ी देर पहले हुजरे से निकलकर दूसरे लोगों के साथ बैठकर तकरीरें सुनने लगा। जलसा खत्म हुआ, लोग बाहर को निकले तो मैंने आखिरी बार मौलवी साहब को देखा जो मेज पर बैठे थे। उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि मैं जाते हुए उनसे न मिलूं। मैंने आंखों ही आंखों में उनका शुक्रिया अदा किया और दूसरे लोगों के साथ मस्जिद से निकलकर बाहर बाजार में आ गया। गैर शऊरी तौर पर मेरी निगाह उस फकीर पर पड़ी जो मस्जिद के ऐन सामने सड़क के किनारे फकीरों जैसा लिबास पहने बैठा था। उसकी आंखें मस्जिद से निकलते लोगों को घूर रही थी। शायद उसने मुझे देखकर पहचान लिया था, क्योंकि मेरे बाहर निकलने के दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैंने उसे उठते देखा तो हिमाकत की कि मैं दौड़ पड़ा। उसने मुझे पीछे से आवाज दी, पकड़ो पकड़ो, चोर है। लोग पलट पलट कर मुझे देखने लगे। ये बड़ी खतरनाक चाल थी, कोई भी मुझे पकड़ सकता था। रात की आमद थी, दिया बत्ती रोशन हो गए थे। सर्दी की वजह से बाजार में इतनी ट्रैफिक नहीं थी, फिर भी लोग आ जा रहे थे। मैं भागता भागता एक गली में घुस गया। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये गली आगे जाकर कहीं बंद तो नहीं हो जाती। गली वीरान वीरान सी थी। गली के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो मेरा दिल धक से रह गया। गली आगे वाकई बंद थी। सामने एक मकान था जिसकी सीढ़ियों का दरवाजा खुला था। मुझे और कुछ न सूझा तो मैं धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ता गया। सीढ़ियां मकान के ऊपर वाली छत पर जाती थी। दरमियानी मंजिल के दरवाजे से मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, कौन हो? मैंने मकान की छत पर पहुंचकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ खेत थे। ये 2 मंजिला मकान था और एक बेरी का दरख्त छत की दीवार के साथ ऊपर तक आया हुआ था। मैंने एक शाख को पकड़ा और झूलता हुआ नीचे खेत में जा गिरा। उठा और सामने की तरफ दौड़ने लगा। मैं बस दौड़ता ही चला गया। मैदान उबूर किया, एक रेलवे पुल के नीचे से गुजरा, एक खाल को फलांगा। अंधेरे में मेरे सर का रुमाल न जाने कहां गिर गया था। एक कच्चे मकान के पीछे मैंने एक साइकिल पड़ी देखी। उसे ताला नहीं लगा था। मैं उस पर सवार होकर जोर जोर से पैडल चलाने लगा। मैं सामने मशरिक की तरफ जाती एक कच्ची सड़क पर रवा दवा था। उस सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी। रात के बढ़ते हुए अंधेरे में ये कच्ची सड़क डूबती चली जा रही थी। दाएं बाएं सब्जियों और कमाद के खेत फैले थे। मैं तेजी से साइकिल उड़ाए चला जा रहा था। मैं एक बार फिर पुलिस के नरगे में आ चुका था। एक बार फिर मुझे किसी जगह पनाह लेने की जरूरत पड़ गई थी। मुझे ये एहसास भी परेशान कर रहा था कि पीछे मौलवी साहब को जरूर पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि मैं उनकी मस्जिद से निकलकर फरार हुआ था। जिसका मतलब यही था कि मौलवी साहब ने मुझे एक मुसलमान होने के नाते अपनी मस्जिद में पनाह दे रखी थी। सवाल ये था कि अब मुझे कहाँ पनाह मिलेगी। अचानक मुझे सेंट्रल जेल वाले घुम्मन सिंह डकैत का ख्याल आ गया। उसका गाँव कादियान से 3 मील दूर श्री गोबंदपुर के पास था और मुझे याद आया कि उसने अपने गाँव का नाम हरचोवाल बताया था, जो रेलवे स्टेशन के करीब ही था। मगर मुश्किल ये थी कि घुम्मन सिंह खुद जेल में था। हो सकता है उसके भाई बंद गिरफ्तार करवा दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि घुम्मन सिंह की बीवी मेरी मदद करे। घुम्मन सिंह के बयान के मुताबिक उसने मुलाकात के दौरान अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया था कि मैंने सांप के जहर से उसकी जान बचाई थी। मुमकिन है जब मैं ये जाहिर करूं कि मेरा नाम करमदीन है तो मुमकिन है कि उसकी बीवी मुझे अपनी हवेली में पनाह दे दे, क्योंकि इसके सिवा मुझे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अमृतसर में जा नहीं सकता था। वहाँ कई लोग मुझे पहचानते थे और गिरफ्तार हो जाने का खतरा था। मैं बाकायदा भेस बदल कर मंसूबे बनाकर अमृतसर रेलवे स्टेशन से बंबई जाने वाली गाड़ी पकड़ना चाहता था और उस वक्त जरूरत इर्द गिर्द फैली हुई पुलिस से बचने की थी, जिसने यकीनन उस सारे इलाके में मुझे तलाश करते हुए दायरा तंग करना शुरू कर दिया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।